Very good morning, children. Welcome to the classroom. We are doing the revision, children, and I hope you all are doing the revisions with me. आप सभी भी मेरे साथ revisions कर रहे होंगे. Okay. We are doing the revisions of the chapter first. Chapter first का हम लोग revision कर रहे हैं. In chapter 1, we had discussed up to the psychometric theory. Today I am going to do the revision of the topic information processing approaches theory, and which include the Gardner theory, Sternberg theory and the PASS model. So very quickly we are going to discuss about it. बहुत जल्दी जल्दी हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसे हम लोग बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बिकॉज एज वी आर डूइंग द रिविजन्स, so revision is our priority. So what the goal I have set for you all, that in this week the video I am making on the chapter 1 and revision. After doing the revisions of each and every topic, I will discuss with you the objective type questions from the chapter first through the video, as well as I will discuss with you the practical also. So be ready for that one. From this chapter we are going to discuss the objective type questions also, as well as the practical also from this chapter. Okay, so firstly we have to cover the concepts, the topics which we have already learned, but we are now just revising it. So be with me in this video, revise with me. Okay, I hope you will do. Chaliye. Okay, so shall we start doing the revisions? So the topic which I am going to discuss with you is Gardner theory of multiple intelligence. Gardner theory of multiple intelligence. I hope the board is visible to you all and it is very clear to you all. Children, we have discussed about the difference between psychometric theory and information processing theory. हमने ये डिस्कस किया कि दोनों में डिफरेंस क्या है. What is the difference between psychometric theory and information processing theory? So this is a theory which come under the information processing. Gardner, his full name is Howard Gardner. इनका पूरा नाम था Howard Gardner. Howard Gardner talked about 8 type of intelligence. 8 type of intelligence. इन्होंने कहा कि there are 8 kind of intelligence, and that is why it is in more in number. So it is known as the multiple theory of intelligence. इसीलिए इसे multiple theory of intelligence भी कहते हैं. So this theory is somewhere written as a multiple theory of intelligence, or maybe somewhere written as a Gardner theory of intelligence. So don't get confused कि ये क्या आ गया, theory of multiple intelligence या Gardner theory of intelligence, both are same. Gardner talked about the 8 kind of intelligence. What are the 8 kind of intelligence? We have read it so many times. So let us discuss it with diagram. Okay. So क्या क्या है? First is linguistic. Okay, I hope the screen is visible to you all properly. Second is logical, mathematical. First is linguistic, second is logical, mathematical. ठीक है, linguistic, logical, mathematical.
spatial, musical, bodily kinesthetic, interpersonal, okay, intrapersonal, interpersonal, intrapersonal, linguistic, logical, mathematical, spatial, musical, bodily kinesthetic, and naturalistic. So it become eight type of intelligence children. ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. So the picture which you are seeing on the board, this 8 kind of intelligence was taught about the Gardner, Howard Gardner. Howard Gardner discussed about linguistic intelligence. Linguistic intelligence is related to the language. The person who is having a very good command over the words, language, so such kind of person is having an linguistic intelligence. They have a good command over the language. उनमें linguistic intelligence होता है. इसमें इस कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, जैसे कि पोएट्स, राइटर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स और whosoever who is linked with the languages, so they all come under this one. Logical mathematical, as it indicated from the name also, logical mathematical intelligence. Logical mathematical intelligence is related to the mathematical ability. Okay, so the person who is having this kind of intelligence, या हम कह सकते हैं उनमें ये इंटेलिजेंस होता है, those who have a very good logical skill and ability or the mathematical ability, जिनमें लॉजिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है जिनकी, उनमें उनको हम कहते हैं कि दे आर हैविंग अ लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. उनमें कौन सी इंटेलिजेंस है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है. इसमें कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, ऑब्वियसली इस कैटेगरी में मैथमेटिशियंस आएंगे, मैथ्स टीचर आएंगे जिनमें लॉजिकल, साइंटिस्ट आएंगे और प्रोफेसर्स आ सकते हैं. सो दीज हु आर हैविंग अ मैथमेटिकल इंटेलिजेंस और द लॉजिकल इंटेलिजेंस. स्पेशियल इंटेलिजेंस उनमें होता है हु हैव अ वेरी गुड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टाइम, डिस्टेंस एंड स्पेस. ओके, दे हैव अ नॉलेज अबाउट द स्पेस, हाउ मच डिस्टेंस, जैसे यहाँ से उनको पता होता है कि वहाँ तक में कितना डिस्टेंस होता है, दे इजली टेल यू इन आवर द किलोमीटर. सो दे हैव अ स्पेशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, एवरीबडी इज पोजेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस. समबडी इज हैविंग द लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, somebody is having the logical mathematical intelligence, somebody is having the spatial intelligence. स्पेशल इंटेलिजेंस किन में आपको दिखेगा, जैसे कि आर्किटेक्चर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेटर्स हैं, ठीक है, सेलर्स हैं जिनको शिप को देखना पड़ता है, नेविगेशन से जो रिलेटेड होते हैं, उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस होता है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेमेंडस काइंड ऑफ इंटेलिजेंस विच वॉज सेट बाय द हावर्ड गार्डनर. स्पेशल के बाद म्यूजिकल, वेरी सो सिंपल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम ऑल्सो. म्यूजिकल इंटेलिजेंस उनमें होता है दोज हु हैव अ गुड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द म्यूजिकल रिदम, पैटर्न, म्यूजिक. उनमें बहुत अच्छी नॉलेज होती है, इन सारी चीज़ होती है, म्यूजिक की, रिदम्स की, पैटर्न्स की. तो इनमें कौन आ सकता है, इसमें सिंगर आ सकते हैं, सिंगर होंगे, कंपोजर हो सकते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हो सकते हैं, डांसर जो सिंगिंग की चीज़ों को, सॉन्ग को अच्छे से समझते हैं, फिर दे डू अ डांसिंग ऑन दैट वन. तो उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होता है. ठीक है,
तो these are the things we have discussed. Next we move toward naturalistic intelligence. Naturalistic नेचर से रिलेटेड है. ये क्या होता है या ये किस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं? सो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उनमें होता है दोज हु हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर. नेचर की उनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और दे लव द फ्लोरा एंड फौना. ओके, फ्लोरा फौना से बहुत कनेक्शन होता है, उनमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है. ऐसे लोगों ज़्यादातर आप देखेंगे बॉटनिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं, एनिमल लवर्स होते हैं, प्लांट्स लवर, फ्लोरा फौना को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. देन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो सकते हैं ऐसे लोग जिनमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है. तो ये सारे पर्सन इस कैटेगरी में आएंगे. द नेक्स्ट कैटेगराइजेशन एंड द नेक्स्ट टाइप इज इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल और इंट्रा में डिफरेंस है ई और ए का. सो दिमाग में रखेंगे, इंटर है वो और ये इंट्रा है. इंट्रा मतलब अ पर्सन हैव द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट वंस ओन सेल्फ. इंट्रा अपने बारे में नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है. और इंटर में दे अंडरस्टैंड द अदर फीलिंग्स, अदर्स इमोशंस वेरी वेल. वो दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरे के इमोशन को बहुत अच्छे से समझते हैं. ठीक है, कौन? जिनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है. और ये क्या है? इंट्रा है. फाइन. सो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस किन में हो सकता है? जैसे कि फिलोसोफर्स जिनको अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, सेंट्स होते हैं, फिलोसफर, ये सब आएंगे इसमें. दोज हु हैव अ वेरी डीप नॉलेज अबाउट देमसेल्फ. ओके, दे नो हाउ टू कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस. सो दे वेरी वेल नोन अबाउट दीज थिंग्स. इंटरपर्सनल, दोज हु अंडरस्टैंड द अदर्स फीलिंग, जैसे कि लाइक द काउंसलर, द साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल थेरेपिस्ट. ये लोगों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है, ना कि इंट्रा. वे दूसरों की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम में भी रहते हैं. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स एंड दे सॉल्व द अदर वन प्रॉब्लम. ठीक है, ऑल्दो दे आर देमसेल्फ इन द प्रॉब्लम बट दे सॉल्व द अदर वंस प्रॉब्लम. So these are the kind of intelligence which are said by the Howard Gardner, and every kind of intelligence have their own quality, and the people who belong to this category, it should be known to you, because in the examination it can be asked define linguistic intelligence, define interpersonal intelligence, or differentiate between interpersonal and intrapersonal intelligence. Who are the people who come under the category of spatial intelligence? So the brief detailed knowledge and कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू ऑल. कंसेप्ट आप सभी के क्लियर होने चाहिए, डिटेल नॉलेज आपके पास इन सभी की होनी चाहिए. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल एवरीबडी. सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो रही हैं. हावर्ड गार्डनर की थ्योरी आप सभी को समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ेंगे हम लोग. क्विकली वी डू द रिविजन ऑफ द ट्राइआर्किक थ्योरी विच इज़ गिवन बाय द रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. सो लेट्स स्टडी द ट्राइआर्किक. Triarchic theory में भी it is also indicated from the name also. नेम से ही आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा होगा. ट्राई वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्राई मीन्स थ्री. ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. अगेन इसकी मीनिंग भी यही हो सकती है कि दिस इज अ थ्योरी विच इज गिवन बाय Robert Sternberg. It is a theory which is given by Robert Sternberg. Robert Sternberg ने ये theory दी है and that is why it is also known by the name of the psychologist. So it can be known as Sternberg theory of intelligence. So again, children, don't be confused. Both are the same thing. Sternberg theory of intelligence and triarchic theory of intelligence. Both are the same thing. ठीक है, क्योंकि स्टर्नबर्ग ने इसे दिया है तो इनके नाम से भी इस थ्योरी को जाना जाता है. हियर द वर्ड इज ट्राई. सो ट्राई यानी समथिंग इज टॉकिंग अबाउट द थ्री. सो इन्होंने थ्री काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बताया, जस्ट डिफरेंट टू द गार्डनर.
जहां गार्डनर ने 8 बताए थे, 8 टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इन्होंने 3 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बताया. गार्डनर टॉट अबाउट द 8 काइंड ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बट ही टॉट्स अबाउट 3. तो व्हाट आर द 3? कौन से 3 हैं? फर्स्ट, कॉम्पोनेंशियल. सेकेंड, एक्सपीरियंशियल. थर्ड, कंटेक्चुअल. प्लीज चिल्ड्रन, ये नाम आप याद कर लो. You remember this name in your mind, memory system. We are doing the revision. मैं फिर से आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करा रही हूँ. Especially these video will be useful for those who not attended the classes from the initial. So अब आप वीडियो देखो, रिवाइज करो साथ साथ, ठीक है. कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, कंटेक्चुअल, ये स्टर्नर ने 3 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस बताए थे. इनके नाम आपको याद हो जाने चाहिए. अगर आपको बोर्ड पे चीज़ें विजिबल नहीं हैं तो मैं आपको डिक्टेट भी कर रही हूँ. कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कंटेक्चुअल, ठीक है. तो ये तीनों नाम याद रख लीजिए. इनके अल्टरनेटिव नेम भी हैं, ठीक है. इन केस ऑप्शंस में आपके पास कोई और ऑप्शन आ जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज. अरे ये तो ट्राइआर्किक में तो ये होते नहीं, हमने तो कॉम्पोनेंशियल पढ़े थे, एक्सपीरियंशियल पढ़ा था, कंटेक्चुअल पढ़ा था, ये क्या ऑप्शन है, ठीक है. तो कॉम्पोनेंशियल को एनालिटिकल भी कहते हैं. कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल. एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, इसे हम क्रिएटिव भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव. और कंटेक्चुअल को प्रैक्टिकल. So these are the alternative name of these kind of intelligence. So option ऐसे भी आ सकते हैं कि Sternberg theory include or talk about the 3 kind of intelligence. Options are analytical, creative, practical. तो instead of giving these option, अगर आपको ये option आ जाए तो आप confuse मत हो जाए कि ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये पढ़ा था. इन्हीं के ही ये alternative name है, other name है, आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है. कॉम्पोनेंशियल को एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, एक्सपीरियंशियल को क्रिएटिव कहा जाता है और कंटेक्चुअल को प्रैक्टिकल कहा जाता है, ठीक है. चलिए, सो इनके डिस्क्रिप्शन हम लोग समझते हैं. सबसे पहला है, द फर्स्ट वन इज कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस. कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस इज इन समथिंग in intelligence, a person who is having the componential intelligence, or we can say that this person is having a componential intelligence. So what are the characteristics of feature? So componential intelligence मतलब it is an ability to use your reasoning skill, your logical thinking. That is why it is also known as analytical intelligence. Okay, in this type of intelligence, a person use the logical thinking, think logically, think analytically for solving their problem. Okay, they go in a very systematic manner. बहुत ही systematic manner में वे लोग काम करते हैं. तो that is the concept of the componential intelligence. Componential intelligence के भी 3 components हैं. Components की बात हो रही है, components से बना है componential intelligence. तो उसके 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? द फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉलेज एक्विजिशन. द फर्स्ट कंपोनेंट इज knowledge acquisition. Second is, you will write it down in detail also, knowledge acquisition component. The first one is knowledge acquisition component. Okay children. Second क्या है? meta component. Meta component. Okay. Third, performance component. So knowledge acquisition component,
मेटा कॉम्पोनेंट एंड परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट। मेटा कॉम्पोनेंट को हम हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट भी कहते हैं। इट कैन बी आस्क्ड इन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेटा कॉम्पोनेंट इज ऑल्सो नोन एज हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट। इसे हम हायर ऑर्डर कॉम्पोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। सो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस टॉक अबाउट द थ्री कॉम्पोनेंट्स नॉलेज एक्विजिशन, मेटा एंड परफॉर्मेंस। नाउ रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा those who are having the componential intelligence they follow these three steps. The first step is acquiring the knowledge. Knowledge acquisition means knowledge acquire करना, ठीक है। क्या करते हैं, जिनके पास कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस होता है पहले वो नॉलेज गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं। उसके बाद वो मेटा कॉम्पोनेंट में जो स्टेज होता है वो प्लानिंग स्टेज होता है, ठीक है। तो जिनके पास कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस होता है, और आई कैन से दोज हु आर पोजेसिंग द कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, फर्स्टली दे एक्वायर द नॉलेज। आफ्टर एक्वायरिंग द नॉलेज दे डू द प्लानिंग करते हैं, and after doing the planning they execute it, which is a performance. They execute, they perform it, ठीक है, on the ground. तो ये जो होती है ये पूरी these are the components of the componential intelligence. जिनमें componential intelligence होता है वो knowledge acquire करते हैं, they do the acquisition of the knowledge, then they plan and then they execute. So ये 3 important components हैं जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। सो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस इज अ टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो बी प्रिपेयर्ड इट इन अ बेटर मैनर। Some of the chart, one of the chart is also given in your NCERT. Please go through it. Some of the tables, form and diagram I also have sent in the group. So आप उससे भी देखेंगे, ठीक है। Children, see right now it is a high time that you all have to work very hard. A very few time is left, so each and every day you have to count, okay, and you have to do the time management properly, ठीक है। चले आगे बढ़े। कॉम्पोनेंशियल समझ में आ गया। एक्सपीरियंशियल, तो कॉम्पोनेंशियल में ये समझ में आ गया ना कि ये लोग बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, हर एक चीज सिस्टमैटिक वे में करते हैं, ठीक है। नॉलेज एक्वायर करना, प्लानिंग करना, दे वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस स्टेज को हायर ऑर्डर स्टेज कहा गया है। प्लान करते हैं, ऐसा नहीं कि पता चला वहां पे ग्राउंड पे बस पहुंच गए और कुछ भी परफॉर्म कर देना, नहीं। तो ये अगर ऐसा कोई लोग कहता है तो उनमें वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है, ना कि कॉम्पोनेंशियल। ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, बस वहां पहुंच गए, जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमने काम कर लिया। पर जो कॉम्पोनेंशियल होते हैं वो बहुत प्लानिंग करते हैं, पूरा एक मॉडल बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है, इस दिन काम करना है, इस डेट पे काम करना है, इस टाइम पे काम करना है, और क्या शेड्यूल, क्या प्लानिंग होगा, देन दे परफॉर्म, ठीक है। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस आई जस्ट होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, माइंड में सेट हो गया होगा, विच वॉज गिवन बाय द रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। आगे आते हैं एक्सपीरियंशियल, ये भी एक टाइप है जो कि स्टर्नबर्ग ने दिया था, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस समथिंग एक्सपीरियंस वर्ड से बना है। सो कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, या हम उन्हें कहेंगे कि उनमें एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि वे अपने एक्सपीरियंस का, अपने पास्ट एक्सपीरियंस का बहुत वंडरफुली एंड क्रिएटिवली यूज करते हैं, ठीक है। दे लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, they learn from their mistake, they improve it, and they use those experiences very creatively to solve new problem. कुछ नई चीज़ उनके सामने आई, बट उसको अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करते हुए उससे और कुछ और नया तरीके से उसको बनाते हैं, कुछ न्यू इनोवेशंस करते हैं। तो ऐसे लोगों में एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस होता है, एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव। हम उन्हें क्रिएटिव भी कहते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, सम इज हैविंग सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, सम इज हैविंग सम, एंड दैट इज व्हाई द बिनेट ने कहा कि एवरीबडी इज हैविंग द इंटेलिजेंस। सबके पास इंटेलिजेंस होता है, बट ये है कि कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंस, ओके।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, द लास्ट वन। कंटेक्चुअल, कंटेस्ट वर्ड से बना है, यानी सिचुएशन। somebody behave according to the situation, जैसा सिचुएशन होगा, जैसा कंटेस्ट होगा, हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस उनमें होता है। ऐसे पर्सन को हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इसलिए कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड है विच इज वेरी फेमस, द वर्ड इज स्ट्रीट स्मार्ट। इन्हें हम कहते हैं दे आर स्ट्रीट स्मार्ट। ये क्या है? स्ट्रीट स्मार्ट है। स्ट्रीट यानी रास्ते पे कुछ हो गया तो दे नो हाउ टू टैकल इट, ठीक है, इन्हें हम स्ट्रीट स्मार्ट कहते हैं। सो कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस हु वर्क अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दे आर हैविंग अ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग डायरेक्ट ग्राउंड पे काम करते हैं, थ्योरीज पे नहीं जाते हैं। जैसे कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस थोड़े थ्योरेटिकल होते हैं, वो थ्योरीज देखते हैं, पैथाग्राम्स देखते हैं, सो मेनी थिंग, रूल्स, ऑब्लिगेशंस, वो सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं। पर ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, एप्लीकेशन की बात करते हैं, ऑन द ग्राउंड की बात करते हैं, ठीक है। तो here we have completed, children. So Robert Sternberg talked about these three kind of intelligence. Robert Sternberg. Howard Gardner talked about 8 kind of multiple intelligence. So the 2 theory, children, I had discussed with you in this video. I hope आप मेरे साथ revise कर रहे होंगे. Please go through your books also. आप अपने बुक्स को भी देखो। पास मॉडल भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसे बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर पाएंगे। सो आई होप दिस इज एनफ फॉर टुडे। सो यू विल रिवाइज इट, आप इसे रिवाइज करिए। ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके। क्वेश्चंस like you all have given the examination, you all have given the class test, UT सब दिया है आपने। तो अब आपके पास क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड को सेट करके फोकस हो और ट्राई टू कवर योर सिलेबस इन अ प्रॉपर टाइम एंड डू हार्ड वर्क, चिल्ड्रन। सी, so I have seen some of the students are not working very hard, so it's very important for them to work hard, okay। now it's a high time, अब आपको मेहनत करनी है, ठीक है। और वी आर देयर फॉर यू ऑल एवरी टाइम, हम लोग आपके साथ हैं। प्लीज़ डोंट हेजिटेट इन आस्किंग द क्वेश्चन। वीडियो देखो, बुक पढ़ो, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उससे पूछो, क्लियर करो, ठीक है। डोंट सिट इट इन योर माइंड। नाउ इन दोनों टॉपिक, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए आज, गार्डनर थ्योरी और स्टर्नबर्ग थ्योरी, तो इन्होंने इंटेलिजेंस की बात कही, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस की बात कही। ऑब्जेक्टिव में जैसे गार्डनर की थ्योरी में कैसे ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये मैंने आप सभी को बताया। सिमिलरली ट्रायआर्की थ्योरी में भी कैसे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट स्मार्ट किस इंटेलिजेंस को कहा जाता है, तो दैट इज़ अ कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। आपसे पूछ लिया जाएगा अ पर्सन्स एबिलिटी टू यूज देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस टू सॉल्व द न्यू प्रॉब्लम। ऑप्शंस कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, क्रिएटिव और स्पेशल, और नन ऑफ द अबव। सो योर आंसर शुड बी एक्सपीरियंशियल। सो ये आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आप वीडियोस को अच्छे से देखेंगे और बुक को अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे ध्यान से सुनेंगे। सी, there is a difference between something hearing and listening. hearing और listening में difference है, ठीक है। hearing आप क्या करते हो, आप अगर वीडियो ऑन कर रहे हो, आपको आवाज़ जा रही है, सेंसेशन हो रहा है, आप सेंसेशन हो रहा है, योर सेंस ऑर्गन ईयर इज परसीविंग दोज थिंग। सो हियरिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड लिसनिंग इज अ डिफरेंट थिंग। एंड मेनी टाइम आई सेड दिस थिंग कि हियरिंग और लिसनिंग में डिफरेंस है। हम अक्सर हेयर करते हैं बट हम लिसन नहीं करते, हैं। मैनी ऑफ द स्टूडेंट आर देयर हु डू नॉट लिसन। हियरिंग करते हैं, लिसनिंग नहीं करते, क्योंकि लिसनिंग के लिए अटेंशन चाहिए। लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आप अटेंशन दे रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो और फिर आप पैराफ्रेज भी कर पा रहे हो।
हेयरिंग करने में आप कभी भी पैराफ्रेज नहीं कर पाओगे. When you do the listening, then you will be able to paraphrase. Paraphrase मीन मैंने अगर मैं आपसे पूछूं मैंने क्या बताया तो आप बता पाओगे उसे. वो तब बता पाओगे जब आप listening करोगे. तो I hope children you will do the hard work, and this is for all today. Thank you so much for listening to me and observing to me. Thank you.